dear students. Now we study about chapters 11 angles of particular trigonometry angles of particular angles. ठीक है. Question number 16 is your if A and B are acute angles. If A and B are acute angles such that tan A is equals to 1 by 3, tan B is equals to 1 by 2, and tan A plus B is equals to tan A plus tan B whole upon 1 minus tan A into tan B. Then show that A plus B is equals to 45 degree. It means you have the value of tan A and tan B, and this is the formula. Tan A plus B is equals to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. तो आपको प्रूफ क्या करना है? A plus B क्या होगा? 45 degree. Let us see how it is. So first of all, using this formula, tan A plus B is equals to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. What is the value of tan A? Here tan A is equals to 1 by 3. Put here 1 by 3 plus 1 by 2 in place of tan B upon 1 minus 1 upon 3 into 1 by 2. Now solve it. Here just note down tan A plus B. Tan A plus B is equals to what we get to solve this? 3 and 2 LCM 6. 6 divided by 3 2 plus 2 divided 6 divided by 2 3 1 is 3. Again here 1 minus 1 into 1 1 upon 3 2 is 6. Now tan A plus B is equals to 2 plus 3 5 upon 6 whole upon 6 1 is 6. 6 1 is 6 minus 1 5 upon 6. So here you get tan A plus B is equals to 5.6 upon 5, it means 5.6 into 6 upon 5, that means 1. अब हमें देखना है here is लेफ्ट साइड में क्या है, कौन सा रेशियो है, tan. तो अब हमें सर्च करना होगा कि tan में किसकी वैल्यू 1 होती है. तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कि 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. Now when we compare tan A plus B is equals to tan 45, we get A plus B is equals to 45. Okay, so it is true. Hence, okay. Next is using the formula. It is the formula. ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे. फॉर्मूला बहुत सारे हैं, sin 2a, tan 2a, cos 2a, sin 3a, cos 3a, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमको क्लास 11 में स्टडी करना है, और क्लास 10 में यहीं तक है. इसलिए यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a is equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a. Find the value of tan 60 degree. It being given that tan 30 is equals to 1 upon root 3. It means tan 30 की वैल्यू आपको गिवन है और आपको tan 60 की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो लेट अस सी हाउ इट इज. सो tan 2a is equals to given है 2 tan a upon 1 minus tan square a. So tan 2a, तो 2 into 30 डिग्री, तो 2 tan a की जगह 30 डिग्री अपॉन 1 minus tan square 30 degree. Then here we get tan 60, which we have to find out. 2 tan 30, 2 into tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 by root 3, और यहाँ पे गिवन भी है, तो 1 by root 3 अपॉन 1 minus 1 upon root 3 का स्क्वायर. Then tan 60 is equals to 2 by root 3 upon 1 minus 1 का स्क्वायर 1, root 3 का स्क्वायर 3. तो क्या मिलेगा हमें, tan 60 degree is equals to 2 by root 3 whole upon 3 1 जा 3 minus 1, 3 1 जा 3 minus 1 यानी 2 by 3. जब इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 2 by root 3
इंटू रेसिप्रोकल, इसकी जगह इंटू और इसका रेसिप्रोकल 3/2, तो 2 कैंसिल, देन 10 60 इज इक्वल्स टू 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्यों? क्योंकि रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट ए इक्वल्स टू ए होता है, तो ए को भी हम √a इंटू √a लिख सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ 3 वी कैन राइट √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 is cancelled by √3, that means 10 60 is equals to √3, that's the answer. Okay, question is your 20th. In the adjoining figure, here is figure given. In the adjoining figure, triangle ABC is a right angle. ABC is a right angle in which angle B is 90 degree and angle A is equals to 30 degree. And AC, hypotenuse is given 20 centimeters. So find, you have to BC and AB. So how to solve that types of question? First of all, we have एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो जब एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया है, एक एंगल 90 डिग्री, इट मींस हम यहाँ पे रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस से रिलेटेड कौन से रेशियोज हमें है? साइन है, कॉस है, सेक है, कोसेक है। तो सेक कोसेक का नॉर्मली यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये साइन और कॉस का रिस्पेक्टिवली इनवर्स है, तो हम लोग नॉर्मली हाइपोटेनस के लिए किसका यूज करेंगे? रेशियो साइन एंड कॉस का, ठीक है। तो पहले BC है, BC क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है? साइन होता है, तो हम साइन 30 अप्लाई करते हैं। तो पहले क्या करेंगे? हेंस साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइट यानी BC अपॉन हाइपोटेनस यानी AC। सो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और BC क्या है? BC है हमारा अननोन और AC क्या है? 20। इसमें रेशियो में ध्यान देंगे कि इसमें से क्या होगा, जो भी रेशियो लेंगे उसमें से एक की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हमारी दूसरी निकलेगी। सपोज हम यहाँ पे क्या कर सकते थे? AB और BC निकालने के लिए हम क्या कर सकते थे? परपेंडिकुलर हाइट अपॉन BC यानी tan 30 पे अप्लाई कर सकते थे, तो tan 30 इक्वल टू क्या होता है? BC अपॉन AB, बट दोनों अननोन वैल्यू है, तो इस तरीके से नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे? ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे जिसमें एक की वैल्यू गिवन। ओके, सो 1/2 is equals to BC is your BC unknown, sorry, find out BC is equals to what? 20 इधर आएगा तो 1/2 into 20 यानी 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली हेंस AB निकालना है, तो AB के लिए हम दो कर सकते हैं, tan का भी यूज कर सकते हैं और cos का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम BC मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं? tan 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos 30 से ही कर लेते हैं, तो cos 30 इक्वल्स टू व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन AC। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल्स टू AB अननोन है, AC हमारा 20 है, तो AB इज इक्वल्स टू व्हाट? 20 इधर आएगा, तो √3/2 into 20 यानी 2 10 जा 20 यानी 10√3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। इफ sin A minus B equals to 1/2, that the equation na, sin A minus B equals to 1/2 and cos A plus B equals to 1/2, where A plus B sum of angle A and angle B is greater than 0 but less than 90, यानी A और B की जो वैल्यू आएगी दोनों को सम करने पे जो रिजल्ट आएगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। एंड और क्या कह रहा है कि एंगल A जो दोनों वैल्यू आएगी A और B में, उसमें एंगल A क्या होगा? B से ग्रेटर होगा। तो आपको फाइंड क्या करना है? A एंड B। सो कैसे करेंगे? तो हेंस sin A minus B is equals to 1/2, देन sin A minus B is equals to, अब हम सर्च करेंगे किस, इधर साइन है तो इधर भी साइन हो, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो कंपेयर करेंगे साइन A minus B equals to sin 30, therefore what? A minus B is equals to 30 degree. That is the equation number 1. Similarly, hence cos
a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू, अब cos में सर्च करेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, देन cos 60। तो cos 60, again we have compared cos a plus b is equal to cos 60, we get therefore a plus b is equal to 60 degree। that's the equation number second। और क्लास 9 में आपने इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका पढ़ा हुआ है। तो a minus b is equal to 30, a plus b is equal to 60। यहाँ देखिए b का कोफिशिएंट निगेटिव है और b का यहाँ पॉजिटिव है, यानी बोथ डिफरेंट साइन। तो डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, a minus b is equal to 30 degree and a plus b is equal to 60 degree। then minus b plus b cancel a to a is equal to 90 degree and a is equal to 90/2 यानी 45 degree। now put the value of a in equation first or second, किसी में भी a की वैल्यू रख देते हैं। तो now put a is equal to 45 degree in equation फर्स्ट में रख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, a minus b is equal to 30 degree। तो in place of a 45 minus b is equal to 30 degree। 30 को इधर ट्रांसफर करते हैं, b को इधर ले जाएंगे पॉजिटिव b, then b is equal to 50 degree। therefore what, angle a is equal to 45 degree and angle b is equal to 50 degree। अब आप चेक कर सकते हैं दोनों की वैल्यू का सम क्या आ रहा है, 45 प्लस 15 60, जो कि क्या है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। और क्या कहा था कि a क्या है, ग्रेटर देन b। देख लीजिए a की वैल्यू 45 है जो कि b से ग्रेटर है। ओके, to the question number 26, if 3x is equal to cosec theta and 3/x is equal to cot theta, then find the value of 3 within bracket x square minus 1/x square। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 3x is equal to given है, 3/x is equal to given है। तो देखिए यहाँ पे हमें x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और यहाँ 1/x स्क्वायर की। तो x स्क्वायर तभी आएगा जब हम इसको क्या करें, स्क्वायर करें। तो 3x is equal to cosec थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट करिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ both side of equation फर्स्ट। क्या मिलेगा हमें, तो 3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इट मींस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी ले लेते हैं, 3/x इज इक्वल टू cot थीटा। अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें, 3/x का स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, यानी cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/x स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड है, इसको इक्वेशन सेकंड करिएगा और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करिएगा। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दें क्योंकि हमें यहाँ माइनस लाना है। तो subtract equation first from equation second from first, फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है। तो क्या मिलेगा, पहले फर्स्ट को लेंगे, इक्वेशन 1 से सेकंड को घटाना है तो पहले 1 लेंगे। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो इक्वेशन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9x स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाया था मैंने फर्स्ट क्लास में, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। उसी क्रम में पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। a लीजिए, थीटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह एक हमारा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटीज का यूज हम करेंगे यहाँ पे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हमें अंदर आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी हमें बाहर अंदर एक्स स्क्वायर माइनस चाहिए। तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है 1 इज इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 3 इधर है तो 1 अपॉन 3। ओके, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th पार्ट। इफ sin a plus b इक्वल्स टू sin a cos b plus cos a sin b। ये फॉर्मूला है sin a plus b cos a minus b cos a plus b sin a minus b tan a plus b tan a minus b। ये फॉर्मूला है जो क्लास 11 में पढ़ना है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको क्या करना है, sin 75 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए sin 75 की तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है 0 30 45 60 एंड 90, बट हमें 75 निकालना है। तो हम क्या करेंगे 75 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो लिखने के लिए तो हम 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, 60 प्लस 15 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। बट ना तो 60 की वैल्यू तो पता है बट वी डोंट वैल्यू ऑफ 15 डिग्री। तो हम लोग ऐसा कुछ रखेंगे जो दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो 45 प्लस 30 हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे sin 75 डिग्री इक्वल्स टू sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है आपका, sin a प्लस b इक्वल्स टू sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पे आप लिखिए sin किसके लिए 75 के लिए 45 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका sin a की वैल्यू 45 cos b यानी cos 30 डिग्री प्लस cos a यानी cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। अब ये हमारा क्या हो गया sin 75 डिग्री। कहां से आई है, क्योंकि hence sin 75 इज इक्वल टू sin 45 प्लस 30। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इनटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इनटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा sin 75 इज इक्वल्स टू √3 into 1 √3 upon 2√2 प्लस 1/2√2। तो 2√2 सेम है तो ऊपर का ऐड करेंगे तो √3 प्लस 1/2√2। दैट द वैल्यू ऑफ sin 75। ओके, इसी तरह आप निकाल सकते हैं cos 15 निकाल सकते हैं। cos 15 के लिए फॉर्मूला दिया रहेगा, आप उसको बेस करके निकालेंगे। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर 12 यानी ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। पहला पढ़ा क्या हम लोग रेशियो पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फिर एंगल्स पढ़ा, फिर अब लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या आइडेंटिटी। इसके बाद क्या होगा हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप इस फॉर्मूलेस को लर्न करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, यानी sin का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा, यानी sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। सपोज जैसे आपको दिया हुआ है sin 90 माइनस a इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा cos a। सपोज गिवन है sin 90 माइनस 32 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos 32। ओके, तो इस आधार पे इस बेस पे जो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।